Praise the Lord, grace and peace be upon you. Welcome to Hosting the Ark Day 37. Today we continue the journey of the Ark and arrive at the Philistine camp. This is one of the most dramatic moments in Israel's history. The Ark of the Covenant was captured by the Philistines, but this story teaches us that God's presence can never be captured, controlled or defeated. आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। होस्टिंग दी आर्क दिन 37 में आपका स्वागत है। आज हम वाचा के संतों की यात्रा में पलिश्तियों की छावनी पहुंचते हैं। ये इज़राइल के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पलिश्तियों ने वाचा के संदूक को पकड़ लिया, लेकिन ये घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति को ना तो बंदी बनाया जा सकता है, ना नियंत्रित किया जा सकता है और ना ही पराजित किया जा सकता है। After Israel was defeated in battle, the elders decided to bring the ark from Shiloh into the battlefield. They believed that simply carrying the ark would guarantee victory. Instead of seeking God with repentance, they depended on a religious symbol. जब इज़राइल युद्ध में हार गया, तब उन्होंने पश्चाताप करके परमेश्वर को खोजने के बजाय शीलो से वाचा का संदूक युद्ध भूमि में मंगवा लिया। उन्हें लगा कि केवल संदूक साथ होने से विजय मिल जाएगी। उन्होंने परमेश्वर के साथ जीवित संबंध के स्थान पर एक धार्मिक प्रतीक पर भरोसा किया। And the result was another defeat. Thousands of soldiers died, and the ark was captured by the Philistines. This points us and teaches us that God's presence cannot be treated like a lucky charm. He desires obedient hearts more than religious activities. परिणाम स्वरूप इज़राइल फिर हार गया। हजारों सैनिक मारे गए और वाचा का संदूक पलिश्तियों के हाथ लग गया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति कोई शुभ लाभ की वस्तु नहीं है। परमेश्वर बाहरी धार्मिक क्रियाओं से अधिक आज्ञाकारी हृदय चाहता है। The Philistines placed the ark inside the temple of their god Dagon. The next morning, they found Dagon laying face down before the ark. They lifted him up, but the following day he had fallen again, and with his head and hands broken off. पलिश्तियों ने वाचा के संदूक को अपने देवता दागोन के मंदिर में रख दिया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि दागोन की मूर्ति वाचा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरी हुई है। उन्होंने उसे फिर खड़ा किया, लेकिन अगले दिन वो फिर गिरा मिला और उसका सिर और दोनों हाथ टूटे हुए थे। This powerful event reminds us that every false god must bow before the living God. God's glory cannot be shared with anyone. Every idol must fall in the presence of Christ. ये घटना हमें याद दिलाती है कि हर झूठे देवता को जीवित परमेश्वर के सामने झुकना ही पड़ता है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और के साथ साझा नहीं करता। जहाँ मसीह की उपस्थिति प्रकट होती है, वहाँ हर मूर्ति गिर जाती है। The ark did not need Israel's army to defend it. God defended His own glory. Even in the enemy territory, He remained king. His authority is not limited by nations or circumstances. वाचा के संदूक की रक्षा करने के लिए इज़राइल की सेना की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा की रक्षा की। पलिश्तियों की छावनी में भी वही राजा था। उसका अधिकार किसी स्थान या परिस्थिति में सीमित नहीं था। The Philistine camp represents every place where people trust human strength more than God. But when God's presence arrives, pride falls, fear disappears, and darkness cannot stand. पलिश्तियों की छावनी उस संसार का प्रतीक है जहां लोग परमेश्वर की अपेक्षा अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं। लेकिन जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है, वहां घमंड टूट जाता है, भय दूर हो जाता है और अंधकार टिक नहीं सकता। This story also points to Jesus Christ. Through His death and resurrection, He defeated sin, Satan, and every power of darkness. Jesus is the true manifestation of God's presence, and every knee must bow before Him. ये घटना हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर भी संकेत करती है। अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने पाप, शैतान और अंधकार की सारी शक्तियों पर विजय प्राप्त की। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति है और उनके सामने हर घुटना झुकेगा। Hosting the ark today means honoring Christ with sincere worship, obedience, and surrendered heart. We do not trust religion, we trust the living Savior.
आज होस्टिंग द आर्क का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु का आदर, सच्ची आराधना, आज्ञाकारिता और समर्पित हृदय के साथ करें। हम धार्मिक परंपराओं पर नहीं बल्कि जीवित उद्धारकर्ता पर भरोसा रखें। Whatever Dagon may exist in your life today, pride, fear, money, success of self-confidence, bring it before Jesus, and His presence is greater than every idol, and His victory is complete. आज आपके जीवन में यदि कोई दागुन है, घमंड, भय, धन का मोह, सफलता का अभिमान या आत्मनिर्भरता, तो उसे प्रभु यीशु के सामने ले आइए। उसकी उपस्थिति हर मूर्ति से महान है और उसकी विजय पूर्ण है। Thank you for joining us today. We look forward to seeing you in Hosting the Ark Day 38 as we continue discovering the incredible journey of the Ark and the revelation of Christ Jesus. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। होस्टिंग द आर्क दिन 38 में फिर मिलेंगे, जहां हम वाचा के संदूक की यात्रा के अगले पड़ाव का अध्ययन करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के और भी गहरे प्रकाशन को जानेंगे। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे।